Welcome once again प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है to this online service. इस ऑनलाइन सभा में। Amen. Celebrate His goodness. परमेश्वर की भलाई को हम मनाएं। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. 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 He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Hallelujah. हालेलुया। Amen. यीशु मसीह देता खुशी। उस गीत को हम गाएंगे, यीशु मसीह देता खुशी। Amen. आमेन। यीशु मसीह देता खुशी, करूं महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। बोलो हालेलुया, 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 आमीन। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करूं महिमा उसकी।
पैदा हुआ, बना इंसान, देखो भागा शैतान। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन। बोलो हालेलुया, 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 आमीन। अरे सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ, बना इंसान, देखो भागा शैतान। ओ हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, आमीन। ओ हालेलुया, 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 आमीन। Amen and amen. Worship God for some time. परमेश्वर की कुछ समय आइए उपासना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Give him glory and praise. ओ He's worthy. सारी महिमा सारी स्तुति प्रभु को दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड। वंडरफुल, Wonderful Jesus, wonderful Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामने आइए, अपनी Hallelujah. Give you उपासना को glory. दे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands, Lord, unto your name. I lift my hands, Lord, unto your name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Oh, तेरी करुणा जीवन से उत्तम, तेरी करुणा जीवन से उत्तम। ओठों से तेरी स्तुति करूँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तेरी स्तुति करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। एक बार और गाइए। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तेरी स्तुति करूंगा,
से तेरी स्तुति करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Bless your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, O my soul, all that is within me. हालेलुया, Bless His holy name. हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। Lord, धन्यवाद, worship your धन्यवाद, name. धन्यवाद। I will bless the Lord and give Him the glory. Oh, I will bless His name and give Him the glory. I will bless the Lord and give Him the glory. Oh, I will bless His name and give Him the glory. Yes, we'll give Him the glory. Sing it again. Oh, I will bless the Lord and give Him the glory. Oh, I will bless His name and give Him the glory. Yes, we'll give Him the glory. Bless your name. Bless your name, O God. Lord, our hearts are filled with thanksgiving to you for this day. परमेश्वर, हमारा हृदय आज के दिन तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। You have been good to us in spite of all our weaknesses. हमारी सारी कमजोरियों के बावजूद तू हमारे प्रति भला रहा है स्वामी। You kept us, brought us to the end of one more year. तूने हमें संभाला और एक साल के अंत में लेकर आया है। Lord, remind us one more time. प्रभु, एक बार फिर से हमें तू स्मरण दिला। Bring to our minds those things that you have done for us, हमारे मनों में उन बातों को लेकर आ प्रभु जो तूने हमारे लिए किए हैं, so that our hearts will be lifted up with thanksgiving and gratitude to you. ताकि हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ उठ जाए। Thank you for the church. Thank you for your people. कलीसिया के लिए धन्यवाद, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद। Thank you for your word. Thank you for your Holy Spirit. तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। Thank you for your servants, O God. तेरे सेवकों के लिए धन्यवाद प्रभु। Oh, I pray प्रार्थना करता your blessing will rest on everyone, तेरी आशीष प्रत्येक जनों की जिंदगी पर बनी रहे, young, old, चाहे वो बूढ़े हों चाहे जवान हों, infants. चाहे मासूम बच्चे हों, Bless them all. उन सबों को आशीष देना।
Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। Hallelujah. Thank the Lord once again for this wonderful morning. परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। God has been good to us परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है and we rejoice in His goodness और and His हम उसकी mercy. भलाई और करुणा के लिए आनंदित होते हैं। The steadfast love of the Lord never ceases. परमेश्वर का वो स्थिर प्रेम कभी रुकता नहीं, His mercies never come to an end. उसकी करुणा का कोई अंत नहीं। They are new every morning. हर सुबह वे नई होती हैं। Great is your faithfulness, तेरी विश्वास योग्यता बड़ी है प्रभु। O Lord, unto me. हे प्रभु मेरे प्रति, Amen. आमेन। We are not consumed this because of His mercy. उसकी करुणा के कारण ही हम भस्म नहीं हुए हैं। Amen. आमेन। Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। Thank you, Father. हालेलुया। Our hearts are filled with thanks to you, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है that you always watch over us. कि तू हर पल हमारे ऊपर नजर रखता है। Lord, you give us grace to live this life. तू हमें अनुग्रह देता इस जिंदगी को जीने का। Thank you, Lord, for your word. धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए। We are fed by your word, Lord. तेरे वचन से तू हमें खिलाता है। You speak to us through your word. अपने वचन से तू हमसे बात करता You है। encourage us through your word. अपने वचन से तू हमें उत्साहित करता है। We thank you, Father. पिताजी तुझे धन्यवाद देते, Thank you that you have not stopped speaking to us. धन्यवाद देते कि तूने हमसे बात करना बंद नहीं किया। Thank you that you hear our every prayer. धन्यवाद तुम्हारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। You have answered so many prayers, O God. तूने इतनी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है You have प्रभु। set the people free. तूने लोगों को आजाद किया है। Let it be so this day. आज के दिन ऐसा होने दे प्रभु। May the anointing of the Holy Spirit तेरी आत्मा का अभिषेक rest upon us unabated. हम सभी पर बिना रुके बना रहे। Break every bondage of the enemy. हर एक दुश्मन के बंधन आज टूट जाएं। Let the captives be set free. जो बंद हुए हैं वो आजाद कर दिए And जाएं। your word will bless our hearts. I तेरा pray. वचन हमारी हृदयों को धन्य कर दे। Anoint us, Lord, we pray. अभिषेक कर प्रभु, हम प्रार्थना करते In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. Shall we turn our Bibles to the book of Proverbs, आइए हम बाइबल में देखेंगे नीति वचन की किताब the 10th chapter. और उसका 10वां अध्याय। We know this book is a book of wisdom. हम जानते हैं ये किताब बुद्धि की बातों की किताब है। For our everyday life. हमारे दैनिक जिंदगी के लिए Lot of instructions. बहुत से निर्देश इसमें लिखे हैं And if we follow them, और यदि इन निर्देशों का कोई पालन करे that person will be surely blessed. वो व्यक्ति धन्य होगा। 10th chapter. नीति वचन 10 अध्याय, Reading from verse 19 to verse 22. 19 से 22 आयत तक। In the multitude of words there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। The tongue of the just is as choice silver, and the heart of the wicked is a little wrath. धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। The lips of the righteous feed many, but fools die for want of wisdom. धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। The blessings of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Amen. आमीन। The blessings of the Lord. परमेश्वर का आशीष। In the same book, in the 11th chapter, इसी किताब के 11 अध्याय में 11th verse says, और उसकी 11 आयत कहती है, by the blessing of the upright the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है,
परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। Amen. आमीन। We read in the scripture पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं that God is a God of blessing. कि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। The first person to bless सबसे पहला व्यक्ति जिसने आशीष दी was God. वो परमेश्वर था। And you find that people from then on, आप पाएंगे उस समय से जो लोग थे they're always seeking for God's blessing. वे हमेशा परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने के लिए तत्पर रहे। Even today, यहाँ तक कि आज के दिन भी mankind is seeking for God to bless them. मानव जाति चाहता है कि परमेश्वर की आशीष उस पर हो, So he runs to many places. और इसलिए वो कई स्थानों में भागता है, He goes to many people बहुत से लोगों के पास जाता है so that he would receive some blessing. ताकि उसे कुछ आशीष मिल जाए। And most of the time, और अधिकतर समय में he goes to the wrong people. वो गलत लोगों के पास चला जाता है, And he goes to the wrong places. गलत स्थानों में पहुंच जाता है, And he spends a lot of money. बहुत धन भी खर्च करता है, And in the end, he returns back empty. और आखिरकार लौटकर खाली आता है। But the blessing of God, लेकिन परमेश्वर जो आशीष देता है it makes you rich. वो आपको धनवान बना देती है। You know, we should not misinterpret the scripture. हमें वचन को गलत अनुवाद नहीं करना We चाहिए। often make mistake by thinking that only material gain is blessing of God. कई बार हम ये गलती करते सोचकर कि जो भौतिक आशीष है वही परमेश्वर की आशीष का प्रमाण है। And many times our judgment is not in line with how God sees things. और कई बार जो न्याय हम करते हैं वो उसके अनुरूप नहीं होता जैसे परमेश्वर देखता है। The scripture says every good gift वचन में लिखा है हर एक अच्छा वरदान and every perfect gift और हर एक सिद्ध वरदान is from heaven. स्वर्ग से above. आता है, It's from the Father of light. It's cometh down from the Father of lights, और ज्योतियों के पिता की ओर से वो हमें मिलता है, in whom there is no variableness. जिसमें कोई अदल बदल नहीं है। Neither is God changes like a shadow changes. और जैसे परछाई बदलती वैसे परमेश्वर नहीं बदलता। Amen. आमेन। So we got to be very wise. इसलिए हमें बहुत ही होशियार होना है। And He is a giver of all good things. वो परमेश्वर हर एक भली वस्तुओं का देने वाला है। It includes material blessings too, उस देने वाले में भौतिक आशीषें भी शामिल हैं, but not always. परंतु हर समय ये नहीं The wealthy are rich, wealthy are people who are blessed. कि धनवान जो लोग हैं वही धन्य लोग हैं, ऐसा नहीं है। The scripture says, पवित्र शास्त्र में लिखा है godliness with contentment कि संतोष सहित भक्ति is great gain. बड़ी कमाई है। You see, so we got to match all scriptures इसलिए वचन को, हर वचन को आपस में मिलाना चाहिए, and get a balanced view. और तब आपको उसमें से एक दृष्टिकोण मिलेगा। But it is a fact परंतु ये बात एक हकीकत है that we are blessed because God blesses us. हम इसलिए धन्य होते हैं जब परमेश्वर हमको आशीष देता He है। sends the rain on the wicked and on the righteous. वो तो दुष्ट आदमी के ऊपर भी बारिश भेजता और धर्मी के ऊपर भी भेजता He है। makes the sun to rise upon the just and the unjust. वो सूर्य की रोशनी न्यायी पर और अन्यायी पर दोनों पर देता है। He brings about new seasons वो नए नए मौसम लेकर आता है so that mankind will be blessed. ताकि मनुष्य जाति धन्य हो जाए, So the earth will bring forth fruit. ताकि पृथ्वी बहुत फल को लाए। It's not God is using that fruit. ऐसा नहीं कि उन फलों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा It है, is for you and me. उसने दिया है आपके और मेरे लिए। So when we think of blessings of God, और इसलिए जब कभी हम परमेश्वर की आशीष सोचते हैं we cannot put it in a box. हम उसे सीमित नहीं कर सकते एक बक्से में। There is a purpose for God's blessing. परमेश्वर की आशीष के पीछे वहां एक उद्देश्य है। He blesses us that we might be a blessing to others. वो आशीष देता है इसलिए कि हम दूसरों को आशीष दें। God blessed Adam and Eve परमेश्वर ने प्रथम पुरुष आदम और पत्नी हवा को आशीष दिया when He था। made them. जब उसने उन दोनों को बनाया, He looked at them उसने उनकी ओर देखा and He blessed them और उन दोनों को आशीष दिया and said to them, और उनसे कहा, be fruitful, तुम फूलो फलो multiply. और बढ़ जाओ। Always
there is a word in blessing. हमेशा वहां पर आशीष देने में कुछ शब्द आते हैं। He uses words. वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। Words of blessing. आशीष के शब्द हैं वे। Be fruitful. वो कहता है फूलो फलो, Multiply. और पृथ्वी पर बढ़ जाओ, Replenish the earth. पृथ्वी को भर लो, Subdue it. और उसको अपने अधिकार में ले लो, Have dominion over it. उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार Over the चले, fish of the sea. पूरे समुद्र की मछलियों के ऊपर, Fowls of the air. आकाश के पक्षियों के And ऊपर, everything that moveth on the earth. और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जंतुओं के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। What a blessing. क्या आशीष है। You are the boss, Adam. आदम तू इनका अधिकारी है, Everything will be under you. हर चीजें तेरे अधीन में रहेगी। And so it was. और ऐसा ही हो गया। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The scripture says वचन कहती है Adam named all the animals. आदम ने सारे जानवरों का नाम रखा। Hallelujah. हालेलुया। God made man in his own image. परमेश्वर ने इस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। Imagine. कल्पना करें, Not only he made them, न केवल उसने ऐसे बनाया, he blessed him. उसने उसके बाद उसको आशीर्वाद दिया। Hallelujah. हालेलुया। You will not know आप नहीं जान how पाएंगे far the blessings of God can take कि you. परमेश्वर की आशीष आपको कितना दूर ले जाएगी। It will take you from generation to generation, पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आशीर्वाद ले from जाएगा। children to children, बच्चों के बाद बच्चों तक वो बना रहेगा, to 1,000 generations. हजारों पीढ़ियों तक वो बना रहेगा। That is the blessing of God. ये है परमेश्वर की आशीष। Hallelujah. हालेलुया। God blessed them. परमेश्वर ने उन्हें आशीष And दिया, devil didn't like that. और शैतान को ये पसंद नहीं आया। That everything is now Adam's. हर चीज अब आदम के अधिकार में दे दिया गया। He's nowhere. अब शैतान का कोई वहां पर स्थान नहीं, He must do some mischief और इसलिए शैतान कुछ दुष्टता करने की योजना किया, so that you will hurt God, ताकि वो ऐसा करके परमेश्वर को खेदित करे, grieve God's heart. प्रभु के मन को दुखित करे। He couldn't touch God. वो परमेश्वर को छू तो नहीं सकता था, Neither can he now. ना आज भी वो कर सकता है। He cannot touch God's people. वो तो परमेश्वर के लोगों को भी स्पर्श नहीं कर सकता। Leave alone God. परमेश्वर की बात तो छोड़ ही दें। Hallelujah. हालेलुया। So he has corrupt plans to destroy the blessing. उसने दुष्टता की योजना बनाई प्रकृति को बिगाड़ने का, Rob man of his blessing. मनुष्य के आशीष से वंचित करने के And you लिए। know, deception was one of his tools. आप जानते हैं उसके बहुत से उपकरण में से धोखा देना एक है, Deception and lies. झूठ कहना और भ्रमित The करना। whole world is running in deception and आज lies. पूरी दुनिया एक भ्रम में चल रही है, And the end of all deception और इस सारे भ्रम का जो अंत है is destruction. वो विनाश है। And you know what happened. और आप जानते क्या हुआ? After Adam and Eve sinned, आदम और हवा ने पाप करने के बाद curse came. श्राप पृथ्वी पर आ गया, It shall bring forth thorns and thistles. और उसमें से कांटे उगने लगे। By the sweat of your brow you shall eat your bread. उसने कहा था तू अपने माथे की पसीने को बहाकर रोटी खाएगा। And woman, you shall bring forth your children in pain. औरत बड़ी पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देगी। It was not so before. लेकिन उसके पूर्व ऐसा नहीं था। It all came because of the fall of man. और ये सब विपत्ति मनुष्य के पाप में गिरने के कारण इस पृथ्वी पर आई। Yet God has been gracious. तो भी ये परमेश्वर अनुग्रहकारी रहा है। Still he continued to bless man. तो भी वो मनुष्य जाति को आशीर्वाद देता रहा। Amen. आमेन। He cannot but bless. वो तो परमेश्वर केवल आशीष देने के अलावा और कुछ करता नहीं। His nature is to bless. उसका स्वभाव में ही आशीष देना। He is the giver of all good things. वो सारी भली वस्तुओं का देने वाला है। Every perfect gift हर एक सिद्ध वरदान and good gift और भला वरदान comes from above, वो तो स्वर्ग से आता है, from the Father of lights, ज्योतियों के पिता की ओर से, in whom there is no variableness and neither he changes as a shadow changes. जिसमें कोई अदल बदल नहीं, जो परछाई के समान बदलता नहीं। Amen. आमेन। And you know, और आप जानते हैं
One time the world got destroyed. और एक समय Noah's time. नूह के समय सारी पृथ्वी का नाश किया गया, But then परंतु उसके बाद again God blesses. फिर परमेश्वर मनुष्य को आशीष देता है। In Genesis 9 chapter 1st verse says, उत्पत्ति 9 और उसके पहले आयत में वो बोलता है, and God blessed Noah परमेश्वर ने नूह को आशीष दी and his sons and said unto them, और उसके पुत्रों को आशीष देकर उनसे कहा, be fruitful, फूलो फलो multiply, और बढ़ो replenish the earth. और पृथ्वी में भर जाओ। Amen. आमेन। And that time God made a covenant, और उस समय परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक वाचा बांधी, showed him a rainbow. उसको एक मेघ धनुष दिखाया। Every time you see the rainbow, हर बार जब आप एक मेघ धनुष देखते हैं, remember God is love. याद रखना परमेश्वर प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. He Amen. keeps his covenant. वो अपने वाचा को युगों तक रखता है। No more will I curse the earth, he said. उसने कहा, मैं पृथ्वी को श्रापित नहीं करूंगा, Let it bring forth. ओ वो फूले फले। Hallelujah. 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 हालेलुया। We get our bread ओ हम अपनी रोटी को आज खाने पाते from this हैं earth इसी पृथ्वी से, because of God's graciousness. परमेश्वर के अनुग्रहकारीपन के कारण। I like one song which says, मुझको एक गीत जो कहता है पसंद करता हूँ, there's a roof up above me. मेरे सर के ऊपर एक छाया है छत की, I have a good place to sleep. मेरे पास सोने के लिए एक अच्छी जगह है। Amen. आमेन। There's food on my table. मेरे मेज में वहां खाने के लिए भोजन There's है, shoes on my feet. पाँव में जूतियां हैं। You gave me your love, Lord, प्रभु तूने अपना प्रेम and a मुझको fine दिया family. और एक सुंदर परिवार दिया। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for your blessings on me. तेरी आशीषें जो मेरे ऊपर हैं। How you make the grass to grow तू कैसे घास को भी उगाता है so the cattle can eat. ताकि जानवरों को उसका भोजन मिले। Hallelujah. हालेलुया। So gracious and so loving. इतना अनुग्रहकारी, इतना प्रेम करने वाला, He blessed them. उसने उन्हें आशीष दिया। God ये परमेश्वर is a God who gives blessings. वो परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला प्रभु है। In 12th chapter of Genesis we read उत्पत्ति के 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं 2 and 3 the verses. उसकी दूसरी और तीसरी आयत में लिखा God है, is speaking to Abraham. परमेश्वर जब अब्राहम से बात कर रहा था, He's saying to him, वो उससे कहता है, I'll make thee a great nation मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा and I will bless और thee. तुझे आशीष Oh, दूंगा। hallelujah. हालेलुया। You don't become great, you don't become small तू महान, तू छोटा नहीं बनता unless the order comes from heaven. जब तक स्वर्ग से हुकूमत ना आए। He says, वो कहता है, Abraham, you have been faithful. अब्राहम तू इतना विश्वास योग्य रहा है, You believed me. तूने मुझ पर विश्वास किया, I will make you a great nation. मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, I will bless thee. मैं तुझे आशीष And then he दूंगा। goes on to say, फिर वो आगे बोलता है, and make thy name great. और तेरा नाम महान करूंगा Thou shalt be a blessing. और तू आशीष होगा। The blessing of Abraham is to bless others. अब्राहम की आशीष ये थी कि वो दूसरों को आशीष देने वाला होगा। I will bless them that bless thee. और जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। And in thee shall all the families of the earth be blessed. और तुझ में भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। Meaning through you all nations will be blessed. यानी कि तेरे कारण, तेरे द्वारा सारे राष्ट्र आशीष पाएंगे। If they know and they follow the true and the living God, यदि वो जीवित और सच्चे परमेश्वर के पीछे चलें, these blessings are bound to come. ये सारे आशीर्वाद उनके ऊपर आना तय है। The blessing of the righteous, धर्मी आदमी के मुंह का आशीर्वाद, the city is established. उसके कारण नगर स्थापित होता है। Hallelujah. हालेलुया। So don't put the righteous aside. इसलिए धर्मी जन को अलग मत करना, Bring them to the platform. उनको सामने लेकर आना, Bring them, make them the foremost. उनको मुख्य बनाना। Because of them the city will be blessed. उन्हीं के कारण नगर धन्य ठहरेगा। Because the words that come out of his mouth क्योंकि जो शब्द उसके मुंह से निकलता are है words of blessing. वे आशीष के वचन हैं। Hallelujah. हालेलुया।
In thee all the families of the earth be blessed. तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। Meaning God is wanting to bless each family. यानी कि परमेश्वर एक एक परिवारों को भी आशीष देना चाहता He है। doesn't want them to there be conflict. वो नहीं चाहता कि वहां पर किसी प्रकार संघर्ष हो। He wants them to have peace. वो चाहता है कि वहां पर उनके मध्य शांति हो। In God's blessing there is peace. यदि परमेश्वर की आशीष है तो वहां शांति है। Jesus stood in the midst of the disciples यीशु मसीह अपने चेलों के बीच खड़ा हुआ after resurrection. पुनरुत्थान के And you know बाद what he said? आप जानते उसने क्या कहा? Peace be unto you. तुम्हें शांत मिले। Amen. आमेन। That was a blessing. ये आशीष था। Hallelujah. हालेलुया। A blessing of peace. शांति का आशीर्वाद It's all there ये सब वहां है in the word of God. परमेश्वर के वचन में। Amen. आमेन। He also blessed his creation. उसने अपनी सृष्टि को भी आशीष दिया। In Genesis 1, उत्पत्ति 1 में God blessed them saying, परमेश्वर ने उनको आशीष देकर कहा, verse 22 I am reading. मैं 22 आयत को पढ़ रहा हूं। Before this you find that he's created the fish of the sea and the fowls of the air and so on and so forth. आप पाएंगे कि इस बात को बोलने के पहले परमेश्वर ने समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, ये सब कुछ उसने बना दिया था। And it says, अब बोलता है, and God blessed them saying, परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी। no, he's not blessing man. देखिए, वो मनुष्य को आशीष नहीं दे रहा है, He's blessing his creation. वो अपनी सृष्टि को आशीष दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Don't curse God's creation. परमेश्वर की सृष्टि को श्राप ना दीजिए। Don't curse your animals. अपने घर के जानवरों को श्राप मत दीजिए, Bless them. उनको भी आशीर्वाद दीजिए। A righteous man's animal is also blessed. एक धर्मी आदमी के घर के जो जानवर है वो भी धन्य हैं। You say, what is this? आप कहेंगे ये क्या बात है? Yes, हाँ, the scripture says वचन में लिखा है the devil had a complaint against Job. कि शैतान ने एक समय आकर अय्यूब नामक धर्मी आदमी के विषय शिकायत की। He said, कहता है, you made a hedge round about him. तूने तो अय्यूब के चारों तरफ एक बाड़ा बांध दिया है। Around him, his children, his cattle, his everything. उसके चारों ओर, उसके बच्चों के चारों ओर, उसके जानवरों के चारों तरफ से। So whenever people are there, और जब कभी भी वहां पर righteous people, धर्मी लोग वहां पर होते हैं, protection of God is there. परमेश्वर की सुरक्षा वहां उनके चारों ओर होती है। Amen. Amen. Where God's presence is, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, automatically they are blessed. वहां आप पे आप वे धन्य ठहरते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It says again, या फिर से लिखा है and Genesis 2 or 3, 2 के 3 में भी God blessed the seventh day. परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। Meaning God blesses the day. मतलब परमेश्वर दिन को भी आशीष देता है। Amen. Amen. So when we rise up in the morning, इसलिए जब हम सोकर सुबह उठते हैं, we know that this day is the day of the Lord. हम जब जानते हैं आज का God दिन has made, प्रभु का दिन है, प्रभु ने बनाया है, and it is blessed. और वो दिन धन्य है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So he blesses man, वो मनुष्य को आशीष he देता, blesses the families, परिवारों को आशीष देता, he blesses his creation, वो अपनी सृष्टि को आशीष देता, he blesses the day. और वो दिन पर भी अपनी आशीष देता है। Hallelujah. Hallelujah. This is the day आज का दिन the Lord यहोवा ने has made. बनाया है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. You and I couldn't see anything आप और मैं कुछ नहीं देख पाते unless he shows us. जब तक प्रभु हमें ना दिखाए। Now, और अब we are called to proclaim the blessings. हम इसलिए बुलाए गए कि हम आशीर्वाद की घोषणा करें। If you turn to Numbers, the 6th chapter, यदि आप गिनती की किताब और उसका 6वां अध्याय को देखें reading from verse 22 to verse 27, और उसकी 22 से लेकर 27 आयत तक, it says like this, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, and the Lord spake unto Moses, saying, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, Speak unto Aaron and unto his sons, saying, हारून और उसके पुत्रों से कहे, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them, कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। Now listen,
सुने, God is giving instructions. परमेश्वर यहाँ निर्देश दे रहा है, Because in our words, there is blessing. क्योंकि शब्दों में वहां पर आशीष है। What kind of blessing are we giving to people? किस प्रकार का आशीर्वाद हम लोगों को दे रहे हैं? So he's telling, give them this blessing to the families of Israel. वो कह रहा कि इज़राइलियों के परिवारों को तुम इन वचनों से आशीर्वाद देना। And what you have to say? और क्या तुम्हें कहना है? The Lord bless thee and keep thee. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। The Lord make his face to shine upon thee and be यहोवा gracious unto thee. तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। Amen. आमेन। I think we must take this portion मैं सोचता हूं कि हमें इस भाग को लेना चाहिए and we must use it upon our families. और हमें अपने अपने परिवारों के ऊपर इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। Let the head of the house say, घर का जो मुखिया है वो इस प्रकार से कहे, the Lord bless and keep thee. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। The Lord lift up his countenance upon thee and give you peace. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। And you shall put this name upon the children of Israel. और इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखना। I will bless them. और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। वो You कहता है। say and I bless. वो कह रहा कि तू कहे और मैं आशीष दूंगा। What do we do? हम क्या करते We हैं? curse us. children. हम आशीर्वाद ना देकर श्राप देते हैं। From morning till evening we are cursed. सुबह से लेकर शाम तक श्राप। We expect something good. How will it come? हम अपेक्षा तो करते कुछ भले की, परंतु वो कैसे आएगा? You curse the children. बच्चों को लोग श्राप देते, You curse your business. व्यापार को बुरा कहते, Curse your servants. नौकरों को बुरा कहते। You hopeless type of fellow this one. अरे तू बेकार आशाहीन व्यक्ति है You are बोलते, useless fellow. You don't do anything in तू life. किसी काम का नहीं है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा बोलते हैं। You are putting a curse upon them. ऐसा शब्दों को बोलकर हम उन पर श्राप डाल रहे हैं। Even we must stop saying like this. हमें इस प्रकार से भी बोलना अब बंद कर देना चाहिए। To small children we say, you little devil. छोटे छोटे बच्चों को माता पिता बोलते कि अरे शैतान। You don't get any other word. आप कोई दूसरा शब्द क्या आप नहीं कह सकते? He's a devil. वो क्या शैतान है? He's a devil. और लोग कहते अरे ये छोटा शैतान है। Without your knowledge, you're pronouncing curses. संभव है अनजाने में आप श्राप अपने मुंह से उस पर बोल रहे। Recant all what you have said. जो कुछ भी कहा है उसके लिए क्षमा मांग के उसे हटाएं, Wipe it off. उसे मिटा डालें। Otherwise, it will follow it. अन्यथा ऐसा ना हो वो शब्द उनका पीछा करे। Listen, these blessings can follow you all through your life. देखिए आशीर्वाद के शब्द जीवन भर आपके साथ साथ बने रहेंगे। Jacob blessed. याकूब नाम क्या Jacob was blessed by Isaac. उसको उसके पिता ने आशीष दिया था। And thousands of years have passed. और इसहाक के आशीष के हजारों साल बीत गए। Israel has become a nation. लेकिन आज उसका बेटा याकूब इज़राइल के नाम में एक राष्ट्र है। He said, go and spread and become a ruler. और उसने कहा था तू जा, तू शासक राजा तुझसे निकलेंगे। He became one. और वो वैसा ही हुआ। Blessings still follow. वो उस पिता की आशीष आज तक बनी हुई है। Thousands of years have passed. हजारों साल उस पिता को बोले हो चुके। The blessing upon Israel. लेकिन इज़राइल देश के ऊपर जो बरकत है, No man shall be able to prevail against you all the days of your life. तेरे जीवन भर कोई मनुष्य तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। So many nations are surrounding Israel. They cannot overcome. कई राष्ट्र जो इज़राइल को घेरे हुए हैं, लेकिन वो उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाते। This is a small nation वो एक छोटा सा राष्ट्र है with a नक्शे big में, God. जिसके पास एक बहुत बड़ा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। It's not the Iron Dome. वो उनका आयरन डोम नहीं है उनका रक्षक, It's God's protection. परमेश्वर की रक्षा
उनकी सुरक्षा है। Is the mountains around about Israel. इस्राएल के चारों तरफ जो Oh. पर्वत और पहाड़ हैं, So shall the Lord be around those who fear him. वैसे ही यहोवा का भय मानने वालों के सामने प्रभु रक्षक बन जाता What है। a blessing, what a blessing. क्या आशीष है। Lord bless you. प्रभु तुम्हें आशीष दे। Lord bless you. प्रभु की आशीष तुम You पर know, when रहे। you and I begin to bless others, वो जिस दिन मैं और आप दूसरों को आशीर्वाद देने लगेंगे, all our bitterness goes. हमारे मन से कड़वाहट सब चली And जाएगी, all the thing which has become congealed inside us will be released. और जो चीजें हमारे अंदर में छिपी हुई है वो दबी हुई चीजें बाहर निकल जाएंगी। Amen. आमीन। The more we keep inside, जितना उन चीजों को हम अंदर छुपाए रखेंगे, we will not be able to benefit of the blessings of God. हम परमेश्वर की आशीषों से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। The Lord lift up their countenance. Lift up परमेश्वर his countenance upon thee अपना मुख तेरी ओर करे, Hallelujah. हालेलुया, and give you peace. और तुझे शांति दे। Amen. आमेन, Amen. आमेन। We are called to bless not only our families, हम अपने केवल परिवारों को आशीष देने के लिए नहीं बुलाए गए, called to bless our enemies. हम अपने दुश्मनों को भी आशीष देने के लिए, That's a tough thing. ये कठिन काम है जो हमें दिया गया है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा है, Matthew's Gospel 5th chapter, मत्ती के सुसमाचार और उसके 5 अध्याय में 44th verse. 5 के 41 आयत में, But I say unto you, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, love your enemies. अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, Bless them that curse you. और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, Do good to them that hate you. जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे तुम भला करो, Pray for them who despitefully use you and persecute you. और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Romans 12:14 says, रोमी same thing. 12 और उसके 14 में भी वही बात लिखी Bless हुई है, them which persecute you, bless and curse not. जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीष दो, श्राप ना दो। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Just recently, अभी हाल ही की बात है, some persecution going around here. इस आसपास के क्षेत्रों में कलीसिया के ऊपर कुछ सताव हो रहा। One pastor was slapped publicly. एक पास्टर को लोगों की भीड़ में उन्हें मारा गया For preaching the gospel. सुसमाचार के प्रचार करने का अपराध। Though he was going to for a cottage meeting, यद्यपि वो जा रहे थे किसी घर में प्रार्थना के लिए, they was caught and one lady smacked him on the cheek. और उन्होंने उनको पकड़ा और उसके गाल में थप्पड़ मारे। You know what he did? आप जानते उसने क्या कहा? He took out his mask, उसने अपने मास्क को निकाला turned the other cheek, और अपना दूसरा गाल भी फेर दिया and said, "Smite me here also." और कहा इधर भी मार लो। Always keeping a smile on his face. हमेशा चेहरे में इस मुस्कुराहट को रख कर चले। And after this, और इस घटना के बाद there was a prayer meeting. वहां पर एक प्रार्थना सभा थी। And in that prayer meeting, उस प्रार्थना सभा में they were praying for their enemies. वे लोग अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. This is what Jesus taught us. यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, Bless them who curse you. जो तुम्हें श्राप भी देते हैं उन्हें आशीष दो। You hopeless fellows, ओ लोग जो कहते तुम बेकार लोग हो, we say blessing of God be upon आप you. कहें परमेश्वर का आशीर्वाद तुझ पे रहे। What kind of blessing? कैसा आशीर्वाद? What blessing are you giving? हम कौन सा आशीर्वाद उन्हें देते हैं? Blessing of salvation. उद्धार की आशीष दें May उन्हें। you be saved. तुम उद्धार पाओ, May you accept Christ as your Savior. यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देख पाओ, May darkness go away from your house. तुम्हारे घर से वो अंधकार हट जाए, May you be set free from demons' power. तुम दुष्टात्मा और शुद्ध आत्माओं की ताकत से आजाद हो जाओ। That is the blessing of God. ये परमेश्वर की आशीष है। Amen. आमेन। And what surprising? और कोई आश्चर्य की बात, No one took up arms to fight. कोई व्यक्ति ने हथियार नहीं उठाए लड़ने के लिए। They said, let's pray for them. उन्होंने कहा आओ हम अपने दुश्मनों के लिए, बैरियों के लिए प्रार्थना, Pray for them who despitefully use you जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, उनके लिए प्रार्थना करो। and persecute you. और जो तुम्हें सताते हैं Love them. उनसे प्रेम रखो, Do good to them. उनके प्रति तुम भला करो। If you're a teacher, यदि आप शिक्षक हैं educate them. तो उन्हें सिखाओ। If you're a doctor, यदि आप डॉक्टर हैं serve them. तो उनकी सेवा टहल If करें। you're a nurse, यदि आप नर्स look हैं, after them. उनकी देखभाल सुधि लें। By doing this, ऐसा करने के द्वारा
they will see God's love. वे परमेश्वर के प्रेम को देखने पाएं। Amen. आमेन। The weapons of our warfare are not carnal, हमारे जो लड़ाई के हथियार है वो शारीरिक नहीं, mighty through God परमेश्वर की ओर से सामर्थी है, to the pulling down of the strongholds. दृढ़ गढ़ों को भी ढा देने के लिए काबिल है। People bless their houses. लोगों ने अपने अपने परिवारों को आशीष दिया। It says in 1 Chronicles एक इतिहास में लिखा है 16 chapter 43rd verse. और 16 अध्याय और उसकी 41 आयत। And all the people departed, every man to his house. And David returned to bless his house. जब प्रजा के लोग चले गए, दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट के आया। He returns from the house of God. वो परमेश्वर के घर से मुड़ा Now he's come to proclaim a blessing on his house. और वो अपने परिवार के ऊपर में आशीर्वाद देने के लिए आया। Now, how many of us do that? हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? Do you bless your business, your shop? क्या आप अपने व्यापार को, अपने दुकान को आशीर्वाद देते? May the blessing of God be upon it. परमेश्वर का आशीष इस दुकान पर रहे, In my house, मेरे घर पर रहे, peace of God, प्रभु की शांति रहे, prosperity of God. संपन्नता रहे। We don't do that. हम ऐसा नहीं करते, But now onwards, परंतु अब से लेकर shall we begin to do it? हम आगे को ऐसा करने लग जाएं। Another way to receive blessing, bless Israel. आशीष पाने का एक और तरीका बाइबल में लिखा है, इस्राएल को आशीष दो। Bless, pray for the peace of Israel. इस्राएल की शांति के लिए प्रार्थना करो, So shall you be blessed. ताकि तुम धन्य ठहरो। Glory to God. हालेलुया। Amen. आमेन। You see, always it returns. देखिए, हमेशा आशीष देने से आशीष लौटती It है, comes back on you. वो वापस आप ही पर लौटती है। Amen. आमेन। Boaz came. बोआज जब आया, It's a, we read in Ruth 2nd chapter 4th verse. और जो रूत के किताब में 2 अध्याय 4 आयत में पढ़ते हैं, And Boaz came from Bethlehem. और बोआज जो था बेतलेहम नगर से लौटा, And he comes to this field. और वो अपनी खेत में आया, And he says to the reapers, और वहां जो फसल काट रहे थे उन लोगों से कहता है, the Lord be with you. परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहे। And the reapers answered, और उन काटने वालों ने कहा, the Lord bless thee. प्रभु तुझे भी आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया। What a businessman. क्या व्यापारी व्यक्ति, What kind of people he has. कैसे लोग उसके पास। Hallelujah. हालेलुया। He doesn't come and start shouting on them. वो आते साथ उनके ऊपर चिल्लाने नहीं लगता, He doesn't make them tremble. वो आते साथ उनको कपकपी नहीं लाता। They are all waiting for him. वे तो जैसे वो उनका इंतजार कर रहे थे। Your Boaz was a very rich man. बोअज ये आदमी बहुत धनी था, He had many workers. उसके पास बहुत से नौकर He has चाकर many थे, fields. बहुत खेत था। And one of the things of his blessing was this. और उसके आशीषित होने का एक कारण ये था, He had learned to bless his people. उसने अपने लोगों को आशीर्वाद देना सीखा था। Amen. Amen. So he comes and says, वो आते साथ क्या बोलता है? and he says to the reapers, अपने वहां फसल काटने वालों को बोलता the है, Lord be with you. यहोवा तुम्हारे संग If the रहे। Lord is with them, यदि परमेश्वर या वो इनके संग रहेगा, then the work will be according to God's will. तो ये कार्य प्रभु की मर्जी से होगा। If the Lord will be with them, यदि प्रभु उनके संग रहेगा, then his work will be blessed. तब हर एक कार्य उनका धन्य His ठहरेगा, field will be blessed. उसका खेत उसके कारण धन्य होगा। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। And they returned the blessing. और वे नौकर लोग भी आशीर्वाद को लौटाए। They all said, उन सब लोगों ने बोला, the Lord bless thee, master. यहोवा तुझे भी आशीष दे स्वामी। Amen. आमेन। So the servant should bless the master. और सेवक को चाहिए कि वो मालिक को आशीष And the दे, master should bless the servant. मालिक को चाहिए कि वो सेवक को आशीष दे। What a beautiful gathering it would be. क्या ही खूबसूरत ये समूह होगा। Everybody blessing one another. हर एक जन एक दूसरे के लिए आशीर्वाद दे। Amen. आमेन आमेन Amen. हालेलुया। Blessing of God परमेश्वर की आशीषें maketh rich in every way. हर तरह से लोगों को धनवान करती है। Now, और अब just not one section. केवल एक तरफ नहीं, Lot of wicked people are wealthy. बहुत से आज दुनिया में दुष्ट लोग भी ऐसे हैं जो कि बड़े धनवान Big हैं। dons and big smugglers. बड़े बड़े स्मगलर्स और डॉन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। They are not blessed. वे लोग धन्य होने के कारण धनी नहीं हैं। The blessing of God is first spiritual. परमेश्वर का जो आशीर्वाद आता है सर्वप्रथम वो आत्मिक होता है।
then mentally blessing, और उसके बाद मानसिक तौर से भी धन्य करता है। physical blessing, शारीरिक आशीर्वाद भी उसमें आता and है then material blessing. और फिर भौतिक आशीष भी आता That's है। why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, you seek first the kingdom of God. सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। You work from morning till evening in your business. तुम सुबह से लेकर शाम तक व्यापार करते हो, You have no time for God. परमेश्वर के लिए समय नहीं। You run, तुम दौड़ते दौड़ते रहते and eventually और अंततः your health breaks down. तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। You have attained तुमने पा लिया है, wealth, धन को तो पा लिया, lost your contact with God. लेकिन परमेश्वर के साथ का वो संपर्क टूट चुका है। The spirit of man will sustain him in his infirmity. मनुष्य की आत्मा उसकी दुर्बलता में उसे संभालती है। Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं रहेगा, but every word that goes out of the mouth of God. परंतु हर एक शब्द जो उसके मुख से निकलते उससे। Seek first the kingdom. पहले परमेश्वर के राज की खोज करो। Young man, हे जवान लड़के, seek God's kingdom first. सबसे पहले परमेश्वर के राज को ढूंढ, And all that you are seeking for, और जो कुछ भी तू ढूंढ रहा है आज, God will add to you. परमेश्वर तब वो सब यूं ही देगा। Remember one thing, एक बात को याद रखना, God will not take second place. परमेश्वर तेरी जिंदगी में दूसरा स्थान नहीं लेगा। Seek first, पहले ढूंढ, not your business. अपने व्यापार को नहीं, Seek first God's kingdom. पहले ढूंढ परमेश्वर का राज को। Where is the Bible in your life? तेरे जीवन में बाइबल का स्थान क्या है? Where is prayer? प्रार्थना का स्थान कहाँ है? The one who has given you breath to breathe, जिस परमेश्वर ने श्वास लेने का बल तुझे दिया है, hands to work, काम करने के लिए हाथ दिए and the feet to take you through. और चलाने को ये पांव दिए हैं। Don't forget that. उस सृष्टिकर्ता को ना भूलना। It's not that he'll rob you, ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर तुझे लूट deprive you, लेगा, make you small. तुझे No. वंचित करेगा, छोटा करेगा, नहीं। Give to God परमेश्वर को पहले दे, yourself, अपने आप को दे, all these things. तब ये सारी संसारिक वस्तुएं, What things? कौन सी The वस्तु? things the Gentiles are running after वो वस्तुएं जिनके पीछे अन्य जाति लोग दौड़ रहे shall हैं, be added to you. वो सब वस्तुएं तुझे दे दी जाएगी। God wants to make us rich परमेश्वर हमें वैसे भी धनवान बनाना चाहता है, spiritually आत्मिक तौर से भी first. पहले। Hallelujah. हालेलुया। There are so many references, we don't have time. बहुत से वचन में ऐसी आयतें हैं, हमारे पास समय का भाव है। It talks in Romans 9 chapter 23rd verse says, रोमी 9 के 23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, and that he might make known unto you the riches of his glory on the vessels of mercy which he hath afford prepared unto glory. रोमियो 9 और उसके 23 में इस प्रकार से वो बोलता है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। On these vessels, इन पात्रों बर्तनों पर God has wanting to put his riches of his glory, परमेश्वर अपने महिमा के धन को प्रकट करना चाहता है, so that others will see how rich you are. ताकि दूसरे देखने पाए कि आप कितने धनवान हैं। Paul says, पौलुस कहता है, we are poor, हम गरीब हैं, but we make many rich. लेकिन बहुतों को धनवान बनाते हैं। What is that you have, Paul? पौलुस, तेरे पास कौन सी वो चीज है? Oh, the riches of his glory परमेश्वर की महिमा का धन is in me. मुझ में है। Colossians 1st chapter कुलसियों पहला अध्याय 27th verse says, और उसकी 1:27 कहती है, to whom God would have made known what is the riches of his glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. और कुलसियों 1:27 में वो कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा और उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Amen. The riches, Christ is in you. मसीह तुम में रहता है। The greatest riches we have. सबसे बड़ा धन जो हमारे पास है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया।
the most precious person in heaven स्वर्ग का सबसे बहुमूल्य व्यक्तित्व is in us. वो हमारे अंदर है. Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन. Again it says, फिर से वो बोलता है Romans 2:4, रोमी और 2:4 में, or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing the goodness of God leadeth thee to repentance. क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? The riches of, in Hindi it is written patience, हिंदी में लिखा है धीरज, in रूपी English धन, it is written goodness. और इंग्लिश में लिखा है उसके भलाई का जो धन है. You know, because of his goodness we repent. आप जानते, उसके भले होने के कारण ही हम पश्चाताप करते हैं. When he should have struck us, जिस समय परमेश्वर को हमें दंडित करना चाहिए था, he withheld his hand. उस परमेश्वर ने अपने हाथ को पीछे कर लिया. And we pondered and thought on that. और हमने उस पर विचार किया, सोचा, And we repented. हमने अपनी गलती से पश्चाताप किया. We never prayed. हमने प्रार्थना नहीं Still की, he blessed us. तो भी उसने आशीष दिया था. That made us to repent. और ये उसका स्वभाव हमें मन फिराव के लिए प्रेरित कर देता है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Jesus could have rebuked Peter. यीशु मसीह पतरस को डांट सकता था That you gone back fishing. कि तू वापस मछली पकड़ने लौट गया. But he says, put the net on the right side. परंतु यीशु मसीह वहां किनारे खड़े होकर कहता है, दाहिनी ओर जाल फेंक You will पतरस, find. वहां मछली मिलेगा. And he found. पतरस को मछली मिला. First is goodness, पहले देखो उसकी भलाई, then repentance. फिर देखो पश्चाताप. He did not rebuke him. उसने पतरस को डांटा नहीं. That was grace. ये प्रभु का अनुग्रह था. Peter fell down on his feet पतरस उसे देखते ही उसके सामने गिर पड़ा. and he said, my Lord and my God, कहता, हे मेरे प्रभु, depart from me. ओ मुझसे प्रभु तू दूर जा. I am a sinful man. मैं एक पापी इंसान हूं. Goodness of God परमेश्वर की भलाई leads you to repentance. आपको अपने पाप के लिए पश्चाताप करने बाध्य कर देती When you है. didn't give him time, जब आपने उसको समय भी नहीं दिया, still he was gracious. तो भी वो कितना अनुग्रहकारी रहा. When you ran away, जब तू उससे दूर भागता रहा, still he forgave. तो भी वो तुझे माफ करता रहा. You neglected him, तूने उसकी उपेक्षा की, still he helped you. तो भी उसने तेरी सहायता करता That रहा. makes us to repent. और उसकी ये भलाई हमें पश्चाताप करवाती है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. Then there's so many places it is written, और बहुत से स्थानों में लिखा हुआ है, riches of his grace, उसके अनुग्रह का बड़ा धन, in whom we have redemption through his blood, forgiveness of sins according to the riches of his grace. उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें पापों की क्षमा और छुटकारा मिलता That है. in ages to come that he might show us the exceeding riches of his grace, कि आने वाले युग में वो अपने अनुग्रह का बड़ा धन हमें दिखाए. showing his kindness towards us through Christ. अपनी दया को वो हम पर प्रकट करता है मसीह यीशु. Isn't that blessing? क्या वो आशीष नहीं है प्रियो? I sometimes think, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, why didn't God give up on me? क्यों परमेश्वर ने हार मान के मुझे छोड़कर नहीं चला गया? So many times, million times we failed him. ओ कितने लाखों बार हम प्रभु को हम निराश किए हैं, Still he's working. तो भी वो काम करना बंद नहीं किया. Because of his mercy, उसकी करुणा के कारण, because of his gift of his grace, उसके अनुग्रह के उस वरदान के the कारण, riches of his grace. उसका अनुग्रह का वो बड़ा Oh, धन. glory to God. Hallelujah. हालेलुया. In is showing kindness towards us through Christ. वो हमारे प्रति मसीह यीशु में परमेश्वर दया दिखाता है. Again it says, फिर से वो बोलता है, Ephesians 4, 2nd chapter, 4th verse. और इफिसियों 7:4 No, में 2. 2 में कहता है, 4th verse says, और 2:4 आयत में, God who is rich in mercy, वो परमेश्वर जो दया का धनी है, for his great love wherewith he loved us.
क्योंकि उसने बड़े प्रेम से हमसे प्रेम किया है। Now you just check on this. आप जरा इसको पढ़ें, It speaks to us ये वचन हमसे बात करता है। something what is spiritual first. कोई ऐसी बात जो सर्वप्रथम आत्मिक है। In James 2:5 it says, याकूब 2:5 में वो कहता है, hearken my beloved brethren, मेरे प्रिय भाइयों मेरी बात को सुनो, ध्यान दो। has not God chosen the poor of this world, क्या परमेश्वर ने इस जगत के गरीबों को और कंगालों को नहीं चुना है, rich in faith, जो विश्वास में धनी हैं heirs of the kingdom, और राज्य के वारिस हैं, that he has promised to them that love him. जिससे उसने अपने से प्रेम रखने वालों को वायदा किया है। Hearken, beloved, प्रियो ध्यान दो, God has chosen the poor, परमेश्वर ने कंगालों को चुना है, rich in faith, जो विश्वास में बड़े धनवान हैं, heirs of the kingdom, राज्य का वारिस उन्हें चुन लिया, promised to them that love him. और प्रतिज्ञा की उनसे जो उनसे उससे प्रेम रखते हैं। 2 Corinthians 8:9 says, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में वो बोलता है, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, that though he was rich, यद्यपि वो धनवान था, yet for your sake he became poor, तो भी तुम्हारे खातिर वो कंगाल बना, that ye through his poverty might become rich. ताकि तुम उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Amen. आमेन। Blessing of the Lord परमेश्वर प्रभु की आशीष maketh rich. हमें धनवान बनाती है, First spiritually. सबसे पहले आत्मिक तौर से। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु ने कहा है, you might have life ताकि तुम जीवन पाओ and have it more abundantly. और बहुतायत का जीवन पाओ। Christ was a person who blessed people. यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों को आशीष देते He थे। took children in his arms, वो बच्चों को गोद में ले लेते blessed थे, them, उनको आशीष देते he थे, laid hands on some of them, और कुछ बच्चों पर हाथ रखकर आशीष देते blessed थे, them. उनको भी आशीर्वाद दिया। Hallelujah. हालेलुया। He blessed the bread and broke. उसने रोटी को भी धन्यवाद करके तोड़ा, And when he was taken away into heaven, और जब स्वर्गारोहण हुआ, he put up his hands and blessed them. उसने हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दिया। Hallelujah. हालेलुया। And then in the whole of the scripture, तब पूरे पवित्र शास्त्र में आप यही पढ़ते these हैं, blessings shall follow them ये आशीषें उनके संग बनी रहेगी, in their home, in the field, and wherever they work, लोगों के घर में बनी रहेगी, उनके खेत में बनी रहेगी, जहां वो काम करेंगे in their वहां, basket, उनके टोकरी पर आशीष in the होगी, purse, उनके जेब में आशीष in होगी, every area of your life. तेरे जीवन के हर क्षेत्र में वहां आशीष Spiritual, होगा। mental, physical, material. आत्मिक तौर से, मानसिक और भौतिक तौर से Open the doors of blessing. आशीष के द्वार को खोल दो। And he challenges them. और वो उनसे चुनौती देकर बोल Bring रहा forth है, the tithes and offerings into my house. ओ अपने दशमांश को और भेंटों को प्रभु के भवन में लेकर आओ, Prove me and see. और मुझे परख कर देखो। God is saying, prove me. परमेश्वर बोल रहा, मुझे परख कर देखो। You say the money doesn't pull through the month. आप कहते कि पैसा पूरे महीने तक नहीं चल पाता है। You put God what is God's. जो प्रभु का है उसे प्रभु को आप दें। Put your 1/10 and I challenge you अपना दशमांश दे, और मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ that God is no debtor to any man. कि परमेश्वर किसी भी आदमी का कर्जदार नहीं हुआ Because he है, says in his word, क्योंकि उसने अपने वचन में उस प्रभु ने कहा है, prove me and see. मुझे परख कर देखो, I will open the windows of heaven मैं आकाश के झरोखे को खोल and दूंगा pour a blessing. और आशीष उंडेल दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Such blessing ऐसी आशीषें you will not be able to contain. जिसे तू संभाल भी नहीं पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God वो परमेश्वर is a God of blessing. आशीर्वाद देने वाला प्रभु है। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, don't close the door. द्वार को बंद ना करें, Do what is right. जो सही है, उचित है, उसे Do करें। what is first we must do. जो पहले हमें करना है उसे करें, Then all these blessings will follow you. तभी सारी आशीषें आपको मिलने लगेंगी। You turn around and see आप मुड़कर फिर देखेंगे goodness भलाई, and mercy. करुणा Follow me जीवन भर संग all the days of my life. वो मेरे जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। Peace in the mind, मन में शांति, peace in my heart. हृदय में शांति, All things सब वस्तुएं God will give to you. परमेश्वर देगा। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, don't judge with your own judgments. अपने ही स्वयं की बुद्धि से निर्णयों को ना लें।
Look in God's word प्रभु के वचन में देखें and say to him, और उससे कहें, like Jacob said, जैसे याकूब ने कहा था, unless you bless me, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, I will not let you go. मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। He wrestled that night उस रात को वो कुश्ती लड़ रहा था with God. परमेश्वर के साथ संघर्ष। You might be living a difficult time, going आप- through a difficult time. संभव है कठिन समय से आप गुजर रहे हैं। You look at others, आप दूसरों की ओर देखते it हैं, seems they are blessed. ऐसा लगता है कि वे लोग धन्य लोग हैं। Remember, याद रखना, every man has a time. हर मनुष्य का अपना एक समय है। God has a time for every man. परमेश्वर के पास हर एक मनुष्य के लिए वक्त है। Your time has come. आपका समय आया है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus has come. यीशु मसीह आया है। My cup's overrun. ओ मेरा प्याला आनंद से उमड़ रहा। Hallelujah. हालेलुया। All that you need जो चीज की जरूरत है is Christ in you, वो है यीशु मसीह तुझ में, the hope of glory. जो महिमा की आशा है। Let him reign. Let him reign. उस प्रभु को अपने जीवन में राज्य करने दे। Say to him, उससे बोलो, reign in me. प्रभु तू मुझ में राज्य, Sovereign Lord, reign in me. ओ प्रभु तू मुझ में राज्य कर। Captivate my heart. मेरे मन को तू, Let your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो, Reign in me. मुझ में हुकूमत तू कर। Amen. आमेन। The thief comes to steal, to kill, to destroy. चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, Jesus said, I have come. लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया You might have it कि abundant life कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ and have it more abundantly. और वो जीवन बहुत आयत में पाओ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, you are a God of blessing. तू हमारे आशीषों का परमेश्वर है। Forgive us our sins, we pray. हमारे पापों को माफ कर हम मांगते हैं। Forgive us for not giving you the first place. तुझे प्रथम स्थान नहीं देने के लिए माफी चाहते हैं। Now we pray. अब हम ये प्रार्थना करें, Hear our prayer हमारी प्रार्थना सुन ले and forgive us. और हमें क्षमा कर दे। If we have cursed others, यदि हमने दूसरों को श्राप दिया, we recant, Lord, हम मुड़ जाते हैं उससे प्रभु and we ask forgiveness. और उन गलतियों के लिए आपसे माफी चाहते हैं। Cancel every wrong word that has come out of our mouth. जो अनजाने से गलत शब्द भी हमारे मुंह से निकले प्रभु से कैंसिल कर दे। For us, for our family members, हमारे लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए जो शब्द बोले गए cancel it, O God. प्रभु आज उसे सब कैंसिल कर दे। We want to bless them. हम अपने परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं। Oh God, ओ प्रभु teach us हमें सिखा, to be like you. तेरे समान बनना सिखा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. 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 Hallelujah. Thank the Lord for your prayers. आप जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Continue to pray. निरंतर हमें प्रार्थना में स्मरण रखें। We thank the church for continuing in prayer for so many days. कलीसिया को भी हम धन्यवाद देते हैं, इतने दिनों से वो संघ में प्रार्थना में जुड़ी हुई है And God has answered. और परमेश्वर ने बहुत सी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for sending your offerings. अपनी भेंटों को भेजने के लिए भी धन्यवाद। God bless you. प्रभु आप सबों को आशीष दे। We sing on chorus. इस समय हम एक कोरस को गा लेंगे You can put your offering wherever you put. और इस दौरान आप अपनी भेंट को जहां पर भी एकत्रित कर रहे हैं वहां पर आप कर सकते हैं। Amen. आमीन। Reign in me, reign in me, reign in me, reign in me. Captivate my heart, let your kingdom come, establishing your throne.
Let your will be done. Reign in me, sovereign Lord, reign in me. Father, I ask you, पिता मैं आपसे मांगता हूँ, your blessing to be upon your people. तेरी आशीष तेरे लोगों के ऊपर रहे, Let there be peace in the home. उनके घरों के अंदर शांति हो, May you supply all the needs. उनकी जरूरतों को तू पूरा कर दे। Those who are sick, you will heal them. जो बीमार हैं तू उन्हें चंगा कर दे। Those who are going through mental trouble, you will जो release them. मानसिक तकलीफ से गुजर रहे, प्रभु तू उन्हें चंगा कर दे। I pronounce your peace on them. मैं तेरी शांति उनके ऊपर मैं घोषणा करता We हूं। bless our homes. हम अपने अपने परिवार को आज आशीर्वाद देते We bless our children. अपने बच्चों को आशीर्वाद देते May they prosper. वो बच्चे तरक्की करे। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, Bless this offering. इस भेंट पर अपनी आशीष दे। Return them 1,000-fold, I pray. देने वालों को 1000 गुना लौटा कर दे। Those who मांगते could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे, प्रभु उन्हें भी तू आशीष देना। Jesus' name. यीशु के नाम में हम मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। Peace of God be upon you. प्रभु की शांति आपके ऊपर ठहर जाए। Amen.